नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित श्री आदि शंकराचार्य की वाक्य वृत्ति और आत्मज्ञान उपदेश विधि है। पुस्तक के कवर पे, फ्रंट कवर पे यहाँ सिर्फ वाक्य वृत्ति का नाम लिखा है, परंतु इसमें दो ग्रंथ हैं, वाक्य वृत्ति और आत्मज्ञान उपदेश विधि। अनुवादक स्वामी जगदानंद जी हैं, इन्होंने ही व्याख्या भी दी है। पुस्तक के बैक कवर पे एक श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है। हैव unadulterated mercy on me, holy sir, and please explain to me briefly the means by which I may become liberated from the bondage of this transmigratory existence without any difficulty। पुस्तक का मूल्य 25 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 53 है, जिसमें से वाक्य वृत्ति पृष्ठ संख्या 36 तक है और उसके बाद से आत्मज्ञान उपदेश विधि है। यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य वृत्ति एंड आत्मज्ञान उपदेश विधि और श्री शंकराचार्य रामकृष्ण मठ मयलापुर चेन्नई द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। इसका प्रेफेस मैं आपको पढ़ के सुना दूं। The English translations of the two works of Sri Shankara, namely the Vakyavritti and the Atmagyan Upadesh Vidhi, are offered to the public in the hope that they will be of help to beginners in understanding the fundamental theme of the Upanishads, which preach the unity of the individual and the universal self, as also the falsity of the world of distinctions. References to quotations and the explanations given in the notes will, it is hoped, facilitate the study of the texts. For the explanatory notes in the Atmagyan Upadesh Vidhi, we are indebted to the commentator Anandagiri. श्री आनंदगिरी की जो व्याख्या है आत्मज्ञान उपदेश विधि की, वहाँ से इसमें कई सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिए गए हैं। Our thanks are due to Professor Mahendra Nath Sarkar for writing a foreword to the Vakyavritti and Mr. V. Subramanya Iyer, BA ex-registrar Mysore University, for going through the manuscript of Atmagyan Upadesh Vidhi and offering valuable suggestions. Translator। एक लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस दी गई हैं, विभिन्न उपनिषदों से यहाँ रेफरेंसेस लिए गए हैं पुस्तक में। ऐतरेय उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईश, कौस्तिक्यू, मांडुक्य, मुंडक, नृसिंह पूर्वत पानियो, श्वेताश्वतर, तैतरीयोपनिषद। वाक्यवृत्ति का फॉरवर्ड है ये। I have been asked to write a foreword to the English translation of the Vakyavritti by Swamiji of the Ramakrishna order. The Swami is an erudite scholar who has the gift of intuition. His conviction is based upon science and realization. The translation has the stamp of a mind conversant with the thought and the art of Advaita Vedanta. The book is an illuminating work of Shankara explaining the import of the axiom of identity, Tattvamasi. The axiom is the cornerstone of the Vedanta. The book is specially meant for those who pursue the Vedantic discipline, eventually to be established in the truth of identity and the ineffable peace. The method is to develop an attitude of non-attachment and of witness to psychic functions. When the mental self is settled down, the Atman as innocent Sakshi is revealed. To the realization of the supreme presence is in the stillness of being, it is necessary to rise above the psychosis and to discriminate the silent self from its dynamic trappings. A step further, the undivided consciousness, freed from all local habitation, and the name emerges out in our vision. The Advaita Vedanta does not entertain the least relation between thou and that, or at least the qualification of that by thou. Thou art that, Tattvamasi, is therefore not a judgment, but the statement of the supreme fact. This brings out at once the distinction of interpretation put upon the axiom of identity by the two schools of Vedanta. The author has given the translation of the slokas preceded by the English rendering of the component words with expository footnotes in the places requiring explanation. The translation is easy and felicitous. The book will introduce the masterpiece of Shankara to the English-speaking race. The analytical contents of the index will help the readers in following the book. महेंद्र नाथ सरकार। ये वाक्यवृत्ति का टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें कुल जो श्लोक हैं वो 53 है, 53, और यहाँ श्लोकों के हिसाब से ही टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ के कौन से श्लोक जो हैं वो क्या कवर कर रहे हैं। अगर आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ही पढ़ लेते हैं तो क्या सब्जेक्ट मैटर वाक्यवृत्ति में डिस्कस किया जा रहा है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। भाषा अंग्रेजी में ज़्यादा जटिल नहीं है, समझना आसान है। वाक्यवृत्ति, द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही है वाक्य की वृत्ति, तो जो वाक्य है, जिस वाक्य पे इस पूरे ग्रंथ का जो फोकस है वो है तत्वमसी। तो यहाँ पर जो है वो वंदना है गणेश जी की, और इससे श्लोक संख्या 3 से ये वाक्यवृत्ति प्रारंभ हो रही है। दिस बुकलेट बिगिंस with this verse. It is in the form of a dialogue between a teacher and a disciple. In the 3rd and 4th verses, the disciple places his problem before the teacher. जो 3rd और 4th श्लोक है उसी में क्वेश्चन पूछता है जो शिष्य है वो अपने गुरु से। और जो बैक कवर पे आपने श्लोक देखा था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद लिखा गया था वो ये 4था श्लोक है। और फिर यहाँ से बताते हैं, द नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द यूनिवर्सल सेल्फ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वैदिक सेंटेंस सच एज दो आर्ट दैट इज द मीन्स टू लिबरेशन। यह जो गुरु हैं
वो बताते हैं कि दो आर्ट दैट तत्त्वमसि इज़ द मीन्स टू लिबरेशन। और उसके बाद फिर ये गुरु शिष्य के संवाद के रूप में जो ग्रंथ है वह आगे बढ़ता है। यहाँ संस्कृत में श्लोक दिया गया है, फिर नीचे उसका अंग्रेजी में हर शब्द का अर्थ दिया गया है। गुरु उवाच, द टीचर रिप्लाइज, ब्रूम, आई शैल गिव यू, समाधानम, द सॉल्यूशन, अत्र, इन दिस मैटर, कह, हु, और फिर नीचे उसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं पे ये दूसरे अन्य स्रोतों से एक्सप्लेनेशन भी एडिशनल दिया गया है, जहाँ भी अनुवादक को लगा कि उसकी आवश्यकता है। अन्य व्याख्याकारों से भी यहाँ जैसे विश्वेश्वराज कमेंट्री उनसे कुछ बातें लेकर दी गई हैं ताकि समझने में सरलता हो। ये 53वां श्लोक है, यहाँ वाक्य वृत्ति समाप्त हो जा रही है। पूरा का पूरा इसमें तत्त्वमसि के ऊपर ही अद्वैत वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी समीक्षा है, उसके बारे में बताया है गुरु शिष्य संवाद के रूप में। ये इंडेक्स है श्लोकों का, जिसको आप मंत्रानाम वर्णानुक्रमणिका भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ से आत्मज्ञान उपदेश विधि प्रारंभ हो रही है। आत्मज्ञान उपदेश विधि में कोई अलग से प्रिफेस या इस तरह का कुछ नहीं है, प्रस्तावना आदि नहीं दी गई है, बट जो कंटेंट है अगर आप वही पढ़ेंगे। आत्मज्ञान उपदेश विधि जो है वो 6 भाग में है, 3 भाग में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 भागों में है। और जो कंटेंट्स हैं जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको ऐसे तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि ग्रंथ किस बारे में है। आत्मज्ञान उपदेश विधि, तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है। अ वे टू द परफेक्शन ऑफ सेल्फ नॉलेज, किस प्रकार से आत्मज्ञान में जो है वो उसको परफेक्ट करें, उसको प्राप्त करें। यहाँ एक पार्ट 4 का मैंने हाईलाइट कर रखा है पैरा। द सेल्फ इज प्रूवेबल नाइदर बाय द वेदास नॉर बाय एनी अदर काइंड ऑफ एविडेंस। द वेदास प्रूव द वननेस ऑफ द सेल्फ एंड ब्राह्मण, not by making the self, which is self-evident, an object of knowledge, but by producing the mental modification, I am Brahma, and thus destroying the ignorance veiling the self। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान उपदेश विधि भी है, प्रथम खंड है, फिर यह द्वितीय खंड है। संस्कृत में श्लोक दिया गया है, फिर हर शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है, और फिर यहाँ नीचे उसका अनुवाद दिया गया है पूरे श्लोक का एक साथ। और यहाँ भी अलग अलग रेफरेंसेस से, उपनिषदों से, सूत्रों से जहाँ भी अनिवार्य लगा वहाँ दी गई है। अब यहाँ देखिए जैसे ब्रह्म सूत्र से जानकारी दी गई है। तृतीय खंड, ये जो पुस्तक मेरे पास थी यहाँ इस पृष्ठ पे कुछ ये प्रिंटिंग के समय पेज शायद मुड़ गया था। ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, और भाषा के बारे में जैसे मैंने कहा इतनी कोई जटिल नहीं है। तो ये आत्मज्ञान उपदेश विधि है, दोनों ही छोटे ग्रंथ हैं। वहाँ पर जो श्लोक था जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स में, मेरे ख्याल से हम वहाँ पहुँच गए हैं अभी। तो जहाँ यहाँ तक पूरा अनुवाद है, और उसके बाद ये जो सीरियल नंबर से देख रहे हैं, ये हर जगह पे नंबरिंग देके फुट नोट टाइप, चूँकि कलेवर पुस्तक का छोटा है तो नीचे फुट नोट ना देकर मेन बॉडी में ही जो भी अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता है वो दी गई है। पुस्तक अंग्रेज़ी में है, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको। तो अगर वाक्य वृत्ति और आत्मज्ञान उपदेश विधि आप पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आशा करता हूँ वीडियो से आपको पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।